Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. A very good day to all of you. Welcome to our very special podcast series right here at ITU FM 90.4, right here at Information Technology University of the Punjab, Lahore. Today, the guest that I am about to introduce to all of you is a very special guest and has to be one of the most interesting introductions I have ever done in my shows, because he's somebody with a stellar academic record. He is an associate professor at one of the leading universities here in Lahore. Along with that, he's an author, an activist, and most interestingly, the lead guitarist for a musical band. And not just any band, a very special band. We'll know more about it as we speak to Dr. Taimur Rahman. A very warm welcome. Thank you very much, Seemal. After that welcome, I feel really welcome. We are we're very happy to have you Thank here you, today. Ji. Thank you for Pleasure taking is out the mine. time. Honor is mine, Ji. Thank you. So where do I start? The band that we're going to talk about, or I just introduced, was Lal the Band. Ji. You've authored the book, The Class Structure of Pakistan, an Ji. award-winning book this was in 2012, I believe. Ji. Yes. Long time And ago. And along with this, since 1998, Ji. you've been teaching political science. Ji, that's correct. What Well, came actually, first? I started teaching economics first. Okay. Then I switched to political Oh, economy. interesting. I did not know that bit. Ji, ji. So what came first? Where do we start off with? Was it teaching? Was that your first love? Was it music? It's difficult to say because I think I was in 6th grade when I read John Holt Okay. की एक बड़ी अच्छी किताब है How Children Fail. Mm-hmm. उसने मुझे बड़ा मुतासिर किया. And but I didn't think that I would become a teacher or a professor at that stage. And then music in my teens, I fell in love with music and Okay. wanting to play music. Nice. और मैंने गिटार ख़रीदा जो कि मुझे ट्यून भी नहीं करना आता था. मैं उसको आउट ऑफ ट्यून ही बजाता रहता था. मेरे दोस्त इतने मेरे से तंग आ गए, उन्होंने एक दिन गिटार ही मेरा तोड़ दिया कि तुझे बजाना नहीं आता, तू छोड़ दे. So, and then I went to college, and there of course, I learned to play guitar properly. Excellent. Took some classes, etc. Mhm. And at that stage, I was very interested in doing theatre. Nice. Even more than music, I was Oh, interested lovely. in doing musical theatre sort of thing. तो और originally मैं as an economics पढ़ रहा था. Economics का मैंने ख़त्म किया तो फिर मेरे पास फिर भी टाइम था because I finished early. So I thought चलो मैं politics कर लेता हूँ. फिर मैंने Nice. politics की. तो दोनों मिक्स हो गई एक तरह से. Good. तो बड़ा मज़ा आया. तो बस at that stage in my life, I started to learn about what was going on in the world. And history and, politics, economics, and, how things had developed the way they had developed. And उस वक्त बस मुझे ये ख्याल आया कि पाकिस्तान तो बहुत पीछे रह गया. सच्ची बात, सीधी सी बात. And which decade was this? Long time ago. 90s. Okay. तो 98 में मैंने फिर सोचा कि मैं जो है ना अमेरिका नहीं रहना चाहता. I was studying the US. Nice. I want to come back to Pakistan and I want to teach. Oh, lovely. And through education मैं कोशिश करूँगा कि चीज़ों को change किया जाए. On the one hand education, on the other hand political activism. And on the third hand later I thought कि well, why not also music, because that's one of my passions. तो इस तरह ये तीनों चीज़ें जो ना mix हो गई. They were all there as strands of my life and aspects of my life, but they kind of merged together from three streams into one. What is nice is that you followed your passion and your interest, because a lot of teenagers, they get interested in music, Right. guitar utha liya, khareed Right. liya, but very few actually follow through Yeah. and bring it to that level That's where true. you brought it to. That's true. When I was about 19 or so, तो जो टीनेजर्स को अक्सर होता है ना कि यार क्या करें, करियर कैसे बनाएं, ये वो सारे डिलेमास मेरे जहन में भी थे. उस वक्त मेरे जहन में ये था, आई रियली लव थिएटर, कि मैं थिएटर करूं या मैं बिजनेस करूं, क्योंकि मेरी फैमिली बिजनेस भी है. तो मैं अपनी टीचर को मिलने गया. शी वाज अ वेरी incredibly gifted, talented and well-read woman. She said to me कि तैमूर, why can't you do both? मैं कहा कि जी वो गरीब गल कर दी थी. What do you mean? I said both. Because हम पाकिस्तानी है ना, तो हमारे जहन में ये इम्प्रेशन है कि भाई एक ही चीज़ आप कर सकते हैं, या डॉक्टर बन सकते हैं या इंजीनियर बन सकते हैं, बस और कोई काम नहीं करना. तो मतलब हमारा बड़ा सिंगल फोकस होता है. She said, yes, why can't you do both? तो एक्चुअली वो मैं इतना शॉक हुआ कि किसी प्रोफेसर ने जब मुझे ये बात कही कि ये क्या मुमकिन भी है. She said, yes, of course it's possible.
So बस that kind of broke some floodgates in my mind. Must have. कि ये जो हम डिवीजन ऑफ लेबर कर लेते हैं कि बस हमने यही काम करना है, इसके अलावा सारी ज़िंदगी वो काम ही नहीं करना, क्योंकि ज़रूरी नहीं है. इफ़ यू कैन फाइंड वेज टू, बिकॉज इंसान नेचुरली वी हैव मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ आवर पर्सनैलिटी, वी हैव मेनी डिफरेंट इंटरेस्ट्स. और हम जब पढ़ाते भी हैं, जिस तरह ITU में यहाँ पे पढ़ाया जाता है, तो हम हमेशा कहते हैं ना कि जी कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी होनी चाहिए, कुछ आर्ट भी, कुछ ब्रॉड एजुकेशन, आपको दुनिया के बारे में भी पता होना चाहिए, किताबी नॉलेज भी होनी चाहिए, वगैरह वगैरह, पीपल स्किल्स भी होनी चाहिए, Absolutely. वेल ग्रूम्ड भी आपको होना चाहिए, ऑल ऑफ दीज थिंग्स. सो दैट्स ऑल पार्ट ऑफ अ वेल राउंडेड पर्सनैलिटी. Absolutely. हम ये कहते हैं, मगर फिर एजुकेशन तक हम ये कहते हैं, मगर फिर जिंदगी में उसको अप्लाई नहीं करना चाहते. You have to be focused. Then we say कि बस 9 to 5 यही करना सारी जिंदगी. But actually, I mean, you have to find ways to manage it. But it can be done if you are passionate about it. This brings me to my second question. You are a teacher. You're an associate professor currently. And side by side, you have been a member of a musical band as well. Has this posed any challenges? Never. If not students, maybe their parents are at times Never. concerned. No? कभी भी नहीं. Really? Not even once. अब मैं 98 से पढ़ा रहा हूँ, तो 98 से अब तक कितने 26 साल पढ़ा रहा हूँ. बिल्कुल. तो एक दफ़ा भी नहीं हुआ कि किसी ने ये एतराज़ किया कि आया था गिटार भी बजाता है, तो गाने भी गाता है. कभी भी नहीं किसी ने एतराज़ किया. जिसको नहीं अच्छा लगता वो ना सुने, भाई उसकी मर्जी है, और बट स्टूडेंट्स की तरफ से भी हमेशा ये रहा है कि ये नहीं है ना कि आई डोंट ये तो नहीं कि मैं क्लास में बैठकर गिटार बजा रहा होता हूँ, बट ये कि एवरी वंस इन अ व्हाइल, exactly, every once in we a have while, multiple generations coexisting side by side in the society. स्टूडेंट्स थक गए हैं तो चलो गिटार उठा के गीत सुना. अभी मैंने एक गिटार उठा के गीत सुनाया तो वो इंस्टाग्राम पे कोई मिलियन उस पे हिट्स आ गए हैं. Oh, lovely. हाँ, तो पर कभी नहीं किसी ने कंप्लेन किया. आई थिंक ये भी शायद ज़्यादा एग्जैजरेटेड है हमारे जहन में कि बिल्कुल बड़ा एतराज़ होगा. शायद कुछ इलाकों में हो, मगर मुझे तो कभी नहीं ऐसे फेस किया. Interesting. That comes as a very pleasant surprise, I must say. एक्चुअली अगर आपकी मेरे ओपिनियन में अगर आप एक अच्छे टीचर हैं and you're doing that job well, तो ये nobody cares about this. Exactly. यार मेरे बच्चे को इतना अच्छा पढ़ाया है इसने, बिल्कुल. तो साथ थोड़ी सी मौसी भी कर ली, कोई बड़ी बात नहीं, Excellent, excellent. So, other than that, teaching generally, any challenges you've faced as a teacher here in Pakistan? वो तो होते रहते हैं, obviously. I'm very lucky कि obviously LUMS जो है वो एक काफ़ी broad academic freedom देता है within the university. So मैं अपने courses खुद ही डिज़ाइन करता हूँ, faculty उनको अप्रूव करती है, बट एवरी वंस इन अ वाइल को मैं ऐसी चीज़ कर देता हूँ जो कि कुछ लोगों को नहीं पसंद आती. तो फिर प्रेशर भी आता है. यूनिवर्सिटी पे भी 2-3 दफ़ा प्रेशर आया है कि भाई ये बंदा क्या कर रहा है. And then it trickles down to you. हाँ, but the good thing is कि my colleagues, fellow faculty members, admin वगैरह सब ने कहा कि नहीं ये उसका हक है, ये उसका पूरा राइट है, और हम नहीं उसको इस पे कुछ कहेंगे और रोकेंगे या किसी हवाले से भी उसको रोकने की कोशिश नहीं करेंगे. Nice, nice, and that is how it should be, ideally. Yes, absolutely. So कभी भी मुझे एडमिन से, यूनिवर्सिटी से कोई ऐसा नहीं प्रेशर आया कि ये ना करो, वो ना करो, ऐसे ना करो. Excellent, excellent. Now moving towards your musical journey, Lal the band. The name itself is very interesting. तो I'm sure कोई इसके पीछे philosophy होगी, कोई कहानी होगी interesting सी. So why Lal? Why that name? So Lal रंग से है. अक्सर लोग कहते हैं शायद वो दूसरा पंजाबी वाला लाल है बच्चा के कहते हैं कैसे ने थोड़े लाल वगैरह, वो नहीं है. तो सो रेड इज़ द कलर ऑफ द लेबर मूवमेंट, जो मजदूरों की तहरीक है, जो जब से शिकागो के अंदर वो मे डे की स्ट्राइक हुई, तो उस वक्त से फिर ये लेबर मूवमेंट का रंग लाल हो गया. तो फिर जब मैं बैंड बना रहा था, विच इज़ नाउ मोर देन 12 years ago, तो मैंने सोचा क्या नहीं, मोर देन दैट थी, हाँ काफ़ी अच्छा हो गया. 2009 was it? 2008 से शुरू हो गया था, 7-8 से शुरू हो गया था एग्जैक्टली. तो मैंने सोचा क्या नाम रखूं. फिर मैंने ये नाम सोचा कि कलर की थीम भी बनती है, बिल्कुल, आपका फलसफा भी बयान होता है. Absolutely. And it's a nice name, short, easy to remember. Absolutely. So that's I'm sure other bands have, had similar philosophies and ideas, but I believe, obviously, there's a little role of luck as well, and your hard work and the talent of the band that definitely, it helped the audiences connect with you people. So Lal
enjoyed the popularity that many other bands with similar philosophies did not enjoy That's over true, time. that's very true. एक fortuitous circumstances थे कुछ के you know उस वक्त वकला तहरीक चल रही थी, लॉयर्स मूवमेंट चल रही थी, बिल्कुल. तो सोशल मीडिया पैदा हो गया था. तो हमने एक गाना किया हबीब जालिब का, मैंने उससे ये कहा बिल्कुल मुशीर, एब्सोल्युटली, आई वो- लव इट. थैंक यू. वो नेट पे डाला तो वो हिट हो गया. अब उस वक्त तो हमें भी तसव्वुर नहीं था कि नेट पे इतनी कोई चीज़ हिट हो सकती है. एब्सोल्युटली. तो बस फिर उसके बाद चलता काम. बट वी वर लकी बिकॉज And then Umeed-e Seher also फिर came. वो I पूरी think album Umeed-e बनी. Seher was जी. that one video I remember. मुझे अभी जी. भी उसके clips याद हैं. हाँ कि जी. it was widely played on television as well. widely played. Yes, yeah, that's वो right. And on बार-बार- news पे चलता Absolutely. था. हर channel पे चल सकता था. Exactly. तो वो फिर एल्बम पूरी की और उम्मीद सैर वाज द टाइटल ट्रैक ऑफ दैट फर्स्ट डेब्यू एल्बम. तो वो क्योंकि वो वकला तहरीक के साथ था ना, इट रेजोनेटेड एट दैट टाइम, तो वो फिर जो है वायरल हो गया. और वायरल आई थिंक इज अ टर्मिनोलॉजी जो तब शायद इतनी कॉमन भी नहीं थी. तब ये वायरल की टर्मिनोलॉजी नहीं था, वायरल नहीं बिल्कुल. थी. So you were viral before being viral became a Before thing. viral Yeah. became a thing, yes. That's nice to know. I think coffees are here. Okay, nice. Now I think I'm lucky enough कि इतना अरसा हो गया लाल द बैंड को सुनते हुए, मगर Thank you. स्टोरी उस नाम के पीछे मुझे हाँ. आज पता लगी. एंड थैंकफुली ड्यू टू दिस प्लेटफॉर्म आई थिंक बहुत से लोगों को आज पता That's लगी होगी. wonderful. That's great. Thank इंटरेस्टिंगली इट्स 2nd of May टुडे, 1st of May लेबर डे कल गुजरा है. बिल्कुल. तो मैं चाहूंगी क्योंकि आपके बैंड के नाम से भी कुछ कोरिलेट करता है, कुछ हमें इस दिन की हिस्ट्री के बारे में भी बताएं. एंड यू नो लाइक एवरी अदर थिंग देयर आर लॉट ऑफ मिसकंसेप्शंस एज वेल. Of course. कुछ क्लैरिफाई कर सकें तो विड बी वेरी I'd be happy to. देखें जी, 19th सेंचुरी में जो कैपिटलिज्म था वो उसमें कोई वेलफेयर स्टेट था नहीं, उसमें लॉज वर्किंग क्लास को, मजदूरों को प्रोटेक्ट नहीं करते थे, कोई मिनिमम वर्किंग आवर्स के लॉज भी नहीं होते थे. एब्सोल्युटली. तो उस पीरियड के अंदर, एक पीरियड के अंदर लोग 16-16 घंटे भी काम करवा जाते थे, 14-14 घंटे काम करवा जाते थे. फिर कुछ लॉज वगैरह बने, 10 आवर्स, ये वो, पहले 12 आवर्स फिर 10 आवर्स. तो फिर 1886 के अंदर शिकागो के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन थी कॉल्ड इंडस्ट्रियल वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड, वो इकट्ठी हुई, नाइट्स ऑफ लेबर वगैरह. एक्चुअली देयर वर सेवरल ऑर्गेनाइजेशंस. ओके. और उन्होंने कहा कि हम जो है ना ये लेजिस्लेशन पास कराना चाहते हैं कि 8 घंटे दिहाड़ी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं. और आज वी टेक इट फॉर ग्रांटेड, अगर 8 घंटे से ज़्यादा काम करेंगे तो डबल ओवर टाइम लेंगे. आई होप अगर आप 8 घंटे से ज़्यादा काम करिए तो डबल ओवर टाइम ले रही हैं उसका. तो उन्होंने ऐसे स्ट्राइक की. अब स्ट्राइक जब उन्होंने की तो उन्होंने सफ़ेद झंडे उठाए हुए थे कि भाई हम अमन चाहते हैं और हम चाहते हैं ये कानून चेंज हो. मगर शिकागो की हुकूमत उस वक़्त बहुत आप कह लें इस मामले में बड़ी एंटी लेबर थी. तो उन्होंने पुलिस वगैरह को बुलाया, लाठी चार्ज हुआ, गोलियाँ चली, मार कटाई, ये वो फैमिलियर. हमें तो, हमारे लिए तो रोज़ की खबर है पाकिस्तानियों के लिए. तो वो जो बहुत मतलब काफ़ी बुरा मैसेकर था. तो उसकी वजह से वो झंडे सारे लाल हो गए खून में, शर्टें सारी लाल हो गई. तो उन्होंने फिर कहा कि बस ये अब लाल हमारा जो है ना सिंबल होगा, लाल झंडा हमारा सिंबल होगा. दे वन दैट स्ट्रगल. वो जो 8 आवर डे की स्ट्रगल थी उस वक्त, पहले तो उन्होंने लीडर्स पकड़ लिए, 4 को फांसी और ये वो 8 को देनी थी, बाकी 4 माफ़ हो गए. तो दे बिकेम ग्रेट हीरोज़. बट फिर पूरी दुनिया के अंदर ना एक लहर चली कि ये क्या बात हुई, यू नो, यू कांट गो अराउंड डूइंग दिस सॉर्ट ऑफ थिंग. तो उसकी वजह से फिर एक एक करके मुल्कों ने इसको एक्सेप्ट किया कि 8 आवर वर्किंग डे होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा. सो दैट वाज अ हिस्टोरिक विक्ट्री ऑफ द पुअर एंड मार्जिनलाइज्ड. तो सो दैट इज़ सेलिब्रेटेड नाउ द वर्ल्ड ओवर, कि एज अ डे जो कमेमोरेट करता है द कंट्रीब्यूशन ऑफ यू नो मेहनत कश तबके की जो कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी को, अपनी मेहनत से जो वो सब कुछ बनाते हैं, चलाते हैं. So that is, you know, that is what May Day represents. Excellent. Really happy to hear that, in the sense that this show today, especially the podcast that we're having, it's not just about music and entertainment. This has been a motto here at ITU FM as well, कि हम infotainment में believe करते हैं. तो बड़ा अच्छा लगता है कि जब इस तरह के मेहमान आए who have so many useful things to share with the youngsters, with the students here at ITU. Thank you. Coming back to Lal the band and the music. क्या मैसेज था जो आप लोग कन्वे करना चाहते थे, और कितना इफेक्टिवली थ्रू दैट मीडियम ऑफ म्यूजिक आप वो मैसेज कन्वे कर पाए? मैसेज तो हम यही कन्वे करना चाहते थे कि यू नो पाकिस्तान के अंदर एक बहुत ही अमेजिंग क्रिएटिव ट्रेडिशन है पोइट्री का, जो कि एक्चुअली तो उर्दू पोइट्री में काफ़ी अरसे से चल रहा है, मगर 30s में इसमें एक नया ट्विस्ट आया कहानी में. वो ये कि एक तंजीम बनी कॉल्ड द प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन, जिसमें फैज़ अहमद फैज़ भी थे और बहुत सारे और लोग.
तो वो PWA या अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन, उसका उर्दू में जो नाम था, उसने ऐसा एक नया लिटरेचर प्रोड्यूस किया जिसमें उन्होंने कहा कि हम शायरी भी करेंगे, मगर हम सिर्फ प्यार मोहब्बत की सिर्फ बातें नहीं करेंगे, वो भी करेंगे, और हम ये नहीं कि सिर्फ बाहर राजाओं के अजमत के गीत गाएं, ये भी नहीं करेंगे, हम गरीबों की भी बात करेंगे, हम उस वक़्त बर सग़ीर को बरतानवी नौआबादियाती निज़ाम से, न्यू कलोनियल सिस्टम से आज़ाद करने की बात भी करेंगे, राइट। और हम ख़वातीन के हकूक़ की बात करेंगे, हम डेमोक्रेटिक राइट्स की बात करेंगे, और सबसे अहम बात ये कि हम सोशलिज़म की बात करेंगे। तो वो भी सारे सुर्खे थे, लाल थे। बिल्कुल। तो उन्होंने अमेजिंग पोइट्री प्रोड्यूस की। उनके जो पाकिस्तान उर्दू पोइट्री में जो सबसे बड़ा जिनका नाम है वो फैज़ अहमद फैज़ है। बिल्कुल। फिर उसके अलावा अहमद फराज, अहमद नदीम कासमी, उसमें हबीब जाले और बहुत सारे और लोग उसमें शामिल रहे। प्ले राइट्स भी उसमें शामिल रहे, पोइट्स भी उसमें शामिल रहे। और उन्होंने उर्दू लिटरेचर को चेंज किया, बिल्कुल, उसकी डायरेक्शन, उसका एवरीथिंग। इट वाज अ वे, इट्स लाइक अ रेनेसांस फॉर उर्दू लैंग्वेज। तो हमारी कोशिश ये थी कि उसको आवाम तक, लोगों तक पहुंचाया जाए, क्योंकि हम भी बेसिकली वही सोच रखते हैं सोशलिज्म की। और सिमिलैरिटी इस तरह से भी है कि शायरी को उससे पहले अदर देन रोमांटिक पोइट्री कोई और डायरेक्शन दी नहीं गई थी। इसी तरह म्यूजिक को भी फॉर सेवरल डेकेड्स सिर्फ एंटरटेनमेंट, समथिंग दैट इंटरेस्ट्स द यंगस्टर्स, या अगेन रोमांस, हीरो हीरोइन, उसी से रिलेट किया जाता था। That's true. तो दिस वाज रिफ्रेशिंग इन दैट सेंस आल्सो कि आप लोगों ने फिर म्यूजिक को भी एक डिफरेंट डायरेक्शन से दी। That's true. That's very true. Actually हुआ करता था, मगर वो एक तरह ख़त्म सा हो गया था। मतलब हम देखते हैं कि 80s के अंदर इकबाल बानो की हम देखेंगे, बिल्कुल फिर नय्यरा नूर सिंग्स फैज़, बड़ी कमाल एल्बम थी वो। मैंने तो सच्ची बात है ज़्यादातर फैज़ की मेरी इंट्रोडक्शन ही नय्यरा नूर की वजह से हुई। True. And that is what increases the effectiveness of that particular message. 100%. कि उसकी रीच फौरन बढ़ जाती है। वो कैसेट में आई थी उस ज़माने में, सब सुना करते थे। तो एक पीरियड में रहा। फिर वो 90s में जब हम बड़े हो रहे थे तो वो ख़त्म हो गया। और कुछ लोगों ने फिर भी किया, टू बी फेयर एंड टू बी मिसाल तौर पे हम जब कर रहे थे तो उस वक्त व्हाट्स हिज नेम, द गाय हु नेवर एजेस, शहजाद रॉय। तो शहजाद रॉय भी इस तरह की चीज़ें करता था कि and must have been multiple other bands also, but not all of them enjoyed that massive popularity that even Shahzad Roy's Laga Rahe enjoyed अभी सुनते हैं, and sadly it is still applicable. जुनून का भी था, आपको याद हो कि उन्होंने भी एहतसाब टाइप चीज़ें की थी। So strange थे, मगर हमारा शायद डिफरेंस ये था कि हमारी पूरी एल्बम ही वो थी। Exactly. So पूरे बैंड की थीम ही वो थी। That was the main difference. So we were very lucky कि वो कामयाब हुआ और लोगों ने उसको पसंद भी किया। Very lucky. So can we look forward to hearing more from Lal the band in the coming years? Absolutely. अभी actually मामला ये है कि मेरे पास बहुत सारे गाने कंपोज पड़े हुए हैं जिनको रिकॉर्ड करना है, रिलीज़ करना है, मगर सिर्फ इशू यही आता है कि आई एम डूइंग सो मेनी डिफरेंट थिंग्स कि वक्त नहीं मिलता। हम अपनी टीम से कोई एक दो लोग आपके साथ आज घर भेज दें, प्लीज भेज दें। आप आए ना जरा, because if you have that we would love to hear it. I would love to put it out for the public, etc. बट वो यही होता है कि आई एम टीचिंग, आई एम डूइंग माई एक्टिविज्म, आई एम डूइंग अ लॉट ऑफ व्लॉग्स एक्सेट्रा, लेक्चर्स, एंड ये वो दो बच्चे भी हैं मेरे, बड़ी प्यारी प्यारी बेटियां हैं। आई हैव सो मच ऑन माई प्लेट कि यकीन करें कि I have not been able to record in at least a year, maybe more than that. I don't know. So I really do need to, and I have some really nice songs. तो करूँगा मैं दोबारा से उनको रिकॉर्ड। जिंदगी में वैसे एक दफ़ा तो नहीं, मेरे ख्याल से शायद कई मरतबा आपके पास ये चॉइस आई होगी, whether to prioritize your teaching career over music or your music career over teaching. नहीं, ऐसा कभी कोई मसला नहीं रहा। वैसे मेरा कभी कभार दिल चाहता है रहा है कि यार अब तैमूर तू बुढ़ा हो गया, अब छोड़ दे यार मौसीकी, किसी और को करन दे। वो एक अंदर से होता है कि मे बी आई शुड स्टॉप नाउ, बट द थिंग इज दैट आई एंजॉय इट, एट द एंड ऑफ द डे इट मेक्स मी हैप्पी. So I keep I'm sure it does. And you have been very active on your YouTube channel recently, interestingly. Actually, a lot of my time nowadays, for the last couple of years now, in fact, has been spent on, putting out academic material on YouTube. So मैंने उस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी है in the last
couple of years now. And I would especially want to thank you for that, because you know, when you talk about content creators, especially Pakistani influencers, YouTubers and content creators, there are very few people putting out videos like you are. Thank you. That are factually correct, that are based on, you know, proper research and studies. आपने पढ़ा हुआ है, आपकी field से relevant है. और अच्छी बात ये कि you're talking about basic concept as basic as democracy, and yet so many people do not understand. But very few understand. सही बात है. Exactly. तो मेरे नज़दीक किताबों को भी उसका जिस्ट सादा अल्फाज में लोगों तक पहुंचाना नेकी है. ये टीचर्स का काम है. बिल्कुल बिल्कुल. नहीं, मगर टीचर्स की क्लासरूम क्योंकि लिमिटेड होती है, you know, you teach a certain number of students in a semester, in a year, but when it's put out on YouTube, people like me, मैं भी सुन सकती हूँ, मैं और 4 लोगों को forward भी करती हूँ. तो you are doing some great work on YouTube, I must say. That is so kind of you. I'm very happy to hear that, because हर वक्त मैं हर रात सोचता हूँ को देख ही नहीं रहा. Hits ही नहीं आए यार. नहीं, it's not just about that. Interestingly, ऐसे content की जो audience है, जो viewership है, वो खामोश लोग हैं. वो देखते हैं, वो WhatsApp पे forward कर देते हैं, वो उससे कुछ related लिखते हैं, करते हैं. वो typical youngsters, teenagers नहीं हैं जो किसी चीज़ को viral कर देते हैं. हाँ, ये बात भी आपकी दुरुस्त है. वैसे देखें ना, मैंने म्यूज़िक में भी यही काम किया. जब मैंने म्यूज़िक शुरू किया था तो मुझे लोगों ने कहा, यार इतनी सीरियस, इतनी मुश्किल शायरी, यू नो, जिगर दरीदा हूँ, चाह के जिगर की बात सुनो, यार को प्यार दी गाल करो कोई, यू नो. तो मगर इट वाज सक्सेसफुल, लोगों ने सुना उसको, यू नो, लोगों ने एंजॉय किया उसको. इसी तरह जब मैंने ये YouTube कंटेंट तैयार किया तो बहुत लोग ये कहते थे, यार हिस्ट्री ऑफ फिलॉसफी कर रहे हो तुम, कौन सुनेगा यार, इतना बोरिंग टॉपिक. मगर लोगों ने सुना. सो मे बी इट्स नॉट crazy viral at that level, but ये है कि, you know, people really such as yourself really do appreciate it, and that makes me happy. Glad to hear that. Now you're somebody who has studied in Pakistan, who has studied abroad as well, and then you decided to come back to Pakistan and teach over here. Unfortunately, over the last couple of years, we've seen कि जो brain drain हमारा issue है, that's becoming severe day by day. हमारे students हैं, इंतज़ार नहीं हो पा रहा कि डिग्री कंप्लीट करेंगे और बाहर चले जाएंगे. ऐसे बच्चों के लिए, क्योंकि हमारी ऑडियंस ज़्यादातर हमारे अपने स्टूडेंट्स हैं, यंगस्टर्स हैं, व्हाट मैसेज वुड यू लाइक टू गिव देम? पाकिस्तान के हालात संभलेंगे, बेहतर होंगे, क्या उन्हें रहना चाहिए, क्या उन्हें जान बचा के भागना चाहिए? व्हाट इज़ योर टेक ऑन इट? देखिए, इसमें ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, बिकॉज हर बंदे की ज़िंदगी में कई चीज़ें होती हैं, उनको देखना पड़ती हैं. और मेरा ख्याल है मैं जजमेंटल नहीं होना चाहता किसी के बारे में. अगर कोई चॉइस करता है कि मुझे बाहर जाना है, मेरे माँ प्यो बूढ़े हैं, मैंने कुछ कमा के उनको यू नो ख्याल रखना है, आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड दैट. मैं नहीं उसको बुरा कहूँगा, बिल्कुल वो उनकी चॉइस है. मगर मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि मैंने ये चॉइस क्यों की. मैंने ये चॉइस इसलिए की क्योंकि मैंने यही समझा कि अगर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर इसी तरह ब्रेन ड्रेन होता रहे और टैलेंटेड लोग जो हैं वो छोड़ के जाते रहें, तो ये तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के हालात नहीं तब्दील होंगे और हमारे जैसे मुल्कों के हालात नहीं तब्दील होंगे. और येस, आई कैन प्रॉबली लीड अ बेटर लाइफ हियर इन द वेस्ट एक्सेट्रा. मगर ये जो मैंने नॉलेज हासिल की है, विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव, बिकॉज बैचलर्स भी मैंने बाहर किया, मास्टर्स भी बाहर किया, PhD भी बाहर किया. सो मेरे पे बड़ी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है. ज़्यादातर ज़ाया ही हुई है, मगर चलो. Not at all. तो मगर मैंने यही सोचा कि भाई इस नॉलेज का बेनिफिट जो है वो मेरे लोगों को होना चाहिए, बिल्कुल, मेरी सोसाइटी को होना चाहिए. सो इट वाज अ वेरी कॉन्शियस डिसीजन कि मैं वापस जाऊं और मैं पाकिस्तान पढ़ाऊं. इनफैक्ट मैं आपको अजीब सी बात बताता हूँ कि मैं तो वहाँ डिप्रेस हो गया जब मैं वहाँ पढ़ रहा था, बिकॉज मुझे, अगर ब्लंटली बात करूँ, आप इजाज़त दें तो, मुझे तो ऐसे ही लगता है फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को पिछले 200-300 सालों से एक्सप्लॉइट करती आई हैं. Absolutely, there's a reason why we're still a developing country. Exactly. तो मैं तो मजलूम के साथ खड़ा हूँगा, मैं तो जालिम के साथ नहीं खड़ा होना चाहता. तो इसलिए फिर मैं जो है ना, मैंने ये फैसला किया कि देन आई एम गोइंग टू कम टू माय कंट्री और मैं यहाँ काम करूँगा, गरीबों के साथ भी करूँगा, एजुकेशन में करूँगा, यू नो, सो टू हेल्प यू oppressed. Stand with your oppressed. Excellent. I really hope that we were able to, get this message across to as many youngsters as we can. और क्योंकि आपकी इंशाल्लाह ये पॉडकास्ट हमारे भी YouTube चैनल पर अपडेट होगी, हमारी लाइव ट्रांसमिशन का भी हिस्सा रहेगी ITU FM 90.4 पे. तो ये मेरे नज़दीक अभी तक के पूछे गए सारे सवालों में से शायद सबसे अहम और मेरे दिल के करीब सबसे अच्छा सवाल था. इसमें एक चीज़ इजाफा कर दूँ आपकी इजाज़त से, वो ये है कि अब अगर जब
मैं ये सोच रहा था कि बाहर रहना चाहिए, आना चाहिए, तो दुनिया उस वक्त काफ़ी मुख्तलिफ थी इस सेंस में कि उस वक्त दुनिया इस तरह इंटीग्रेटेड नहीं थी। मेरी अम्मी मुझे महीने में एक दफ़ा कॉल करती थी, 10 रुपया फ़ी मिनट कॉल चार्ज होती थी, उस ज़माने के 10 रुपये बड़े होते थे, यानी आप समझे 100 रुपया फ़ी मिनट कॉल। तो अब तो दुनिया ही सारी बदल गई है। अब जो बंदे बाहर भी बैठे हैं वो भी एक बहुत अहम किरदार अदा कर सकते हैं पाकिस्तान की डेवलपमेंट में, सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हुए। ख़ास तौर पे मैं ये कहूँगा कि अगर नॉलेज और स्किल्स ट्रांसफ़र हो वेस्ट से ईस्ट की तरफ, और जो कि बड़ा आसान मुमकिन भी है, तो ये दिस वुड बी अ ह्यूज बेनिफिट टू अस। एब्सोल्युटली। सो what are you working on currently? Any project in the pipeline, maybe another book, another, anything that you're coming up with? Well, right now I've been researching a lot about Arab history and Islamic history. Okay. बड़ा ही दिलचस्प सब्जेक्ट है। कुछ आपकी recent videos भी इसी हवाले से? बिल्कुल आप फॉलो कर रही हैं, मुझे खुशी हो रही है सुन के। डेमोक्रेसी वाला भी आपको पता था, ये भी पता था। तो हमें जिस तरह बचपन में पढ़ाया जाता था, तो वो एक मखसूस नैरेटिव है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा सवाल जवाब नहीं है, बिल्कुल बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा, जिस तरह इनफैक्ट डिस्करेजिंग है, ज़रूरत से ज़्यादा सवाल ज़रूरत से ज़्यादा डिस्करेजिंग है। मगर जब आप एक्चुअल हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपको इतनी अमेजिंग फैसिनेटिंग किस्म की डिबेट्स का पता चलता है कि अच्छा यार ये नुक्ता नज़र भी था, फिर ये भी था, फिर ये भी किसी ने कहा, फिर यूं भी किसी ने सोचा, फिर यूं करके इन चीज़ों का यूं करके कॉम्बिनेशन और सिंथेसिस निकला, और फिर उसमें से ये सोच निकली, और उसमें से ये तहरीक निकली, और फिर ये रियासत थी, उसको तख्ता पलट दिया, फिर ये हो गया। आई मीन इट इज़ अमेजिंग। तो हम देखें ना, स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो हम ग्रीक हिस्ट्री से शुरू करते हैं, प्लेटो, एरिस्टोटल की बात तो करते ही हैं, फिर अगर आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ानी है तो आपने लॉक की भी बात करनी है, हॉब्स की भी बात करनी है, रूसो की पढ़ाना है आपने, कुछ इमैनुअल कांट का भी पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत कार्ल मार्क्स का भी। मैं कहता हूँ कि मैं खुद पढ़ाता हूँ, बिल्कुल मैं खुद पढ़ाता हूँ, मगर एट द सेम टाइम ये ऑब्वियसली एक सिविलाइजेशन की तारीख का हिस्सा है, और हम at the crossroads of 3 civilizations है। एक वेस्टर्न सिविलाइजेशन, क्योंकि कॉलोनियल एक्सपीरियंस है, एक बड़े सगीर की अपनी जो तहजीब है, सिविलाइजेशन, उसकी जो अपनी तारीख है which is thousands of years old, और एक जो अरब सिविलाइजेशन है, इनफैक्ट अरब एंड पर्शियन सिविलाइजेशन दोनों ही मिक्स करें। सो वी आर एट द क्रॉसरोड्स ऑफ 4 civilizations। अमेजिंग। तो वी हैव टू लर्न अबाउट दीज थिंग्स। सिर्फ ये तो नहीं कि हम वेस्ट की हिस्ट्री पढ़ें, हमें अरब हिस्ट्री भी आनी चाहिए, हमें अपनी तारीख भी, ईरान की हिस्ट्री भी, हमें वैदिक पीरियड क्या था, कास्ट सिस्टम कैसे डेवलप हुआ, अहमद शाह अब्दाली क्यों इधर आया, ये सारी चीज़ें मुझे तो बहुत फैसिनेटिंग लगती हैं, क्योंकि सॉरी नहीं कंटिन्यू प्लीज, क्योंकि वो ये मेरी तारीख है, इट टेल्स मी हु आई एम, मैं क्यों इस तरह हूँ जिस तरह मैं हूँ। ट्रू, बिल्कुल, इसलिए मुझे बहुत अमेजिंग लगती है। बट आई थिंक अगेन द पॉइंट वुड बी कि ये आपकी फाउंडेशन होनी चाहिए, ऑल दिस नॉलेज, कि हम यहाँ क्यों हैं, कैसे हैं, मगर एक अगला सवाल भी होना चाहिए, व्हाट नेक्स्ट, नाउ व्हाट इज हैपनिंग, और अगर ये इसी तरह होता रहा तो आगे क्या होगा। तो हमारा करिकुलम भी उस हवाले से अपडेटेड रहना चाहिए, एंड आई थिंक दैट इज व्हाई वी नीड मोर टीचर्स लाइक यू, जिनका पास्ट पर तो फोकस है मगर फ्यूचर की तरफ भी नजर है कि नाउ व्हाट। एग्जैक्टली। और मेरा ख्याल है जितने भी हिस्टोरियंस हैं ना, वो पास्ट को सिर्फ पास्ट की वजह से पढ़ते ही नहीं हैं, वो पास्ट को पढ़ते हैं टू गेट कि वो मौजूदा दौर के लिए असबाक निकाले हैं। यू नो, दे एक्चुअली स्टडी हिस्ट्री टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट इन ऑर्डर टू बिल्ड फॉर द फ्यूचर। ऑल हिस्टोरियंस डू दिस, ऑल ऑफ देम, इवन दोज जो कह रहे हैं नहीं मैं तो ऐसे नहीं करता, मैं तो सिर्फ ऑब्जेक्टिवली स्टडी कर रहा हूँ, बट यू कांट हेल्प इट बिकॉज यू आर प्रेजेंट इन द प्रेजेंट, एंड दैट इज कलर्ड योर thought process. And so when you look to the past, you're actually trying to answer questions about the present. So it's the case with all historians. So yes, हमें बहुत सारे मसाइल हल करने, एक तो आपने खुद बताया अंडर डेवलपमेंट का इशू है, जो कि शायद सबसे ही अहम इशू है कि हाउ डू पाकिस्तान को किस तरह जो है ना तरक्की की राह पे लेकर जाना है। और हम एक तरह से फंस गए हैं, पिछले चंद सालों में तो बहुत ही बुरी तरह फंस गए हैं, मगर काफ़ी अरसे से एक स्टैग्नेशन नज़र आ रही है। दूसरा फिर ये मामला है कि हाउ डू वी बिल्ड अ सोसाइटी, और फर्स्ट हाउ डू वी बिल्ड अ स्टेट जिसमें कि कंसेंट ऑफ द गवर्न शामिल है, जिसके अंदर मतलब है कि लोगों की राय का एहतराम है, और लोग भी महसूस करते हैं कि हाँ यार ये रियासत जो है ना ये हमारी नुमाइंदगी करती है। yes, yes, true. अच्छा, फिर तीसरा सवाल ये है कि वो सोसाइटी से डील करता है
कि हाउ डू वी बिल्ड अ सोसाइटी जिसके अंदर हम एक दूसरे के साथ ये ना हो कि कोई छोटे मोटे इख्तलाफ पे जो है ना एक दूसरे का गला काटने बैठ गए, सॉरी टू यूज हार्श वर्ड्स, बिल्कुल नहीं, बट दैट इज द रियलिटी, दैट इज़ द रियलिटी कि हम जो है वो किस तरह एक टॉलरेंट मुआशरा पैदा कर सकते हैं, जो कि एक हो सकता है कि मेरा आपसे किसी और मामले पे इख्तलाफ भी हो, मगर आपका भी एक पूल ऑफ टैलेंट है तो उससे सोसाइटी इस्तेफादा कर सकती है. सो हाउ कैन वी बिल्ड ऑन द, अगर हम सिर्फ नेगेटिव पे फोकस करते रहें तो बस तो फिर हम लड़ते ही रहेंगे. बट हाउ कैन वी बिल्ड ऑन द, लर्न फ्रॉम ईच अदर, द पॉजिटिव्स इन ईच अदर. दैट्स हाउ सिविलाइजेशंस एडवांस. So these are some of the things that I think we need to look at, think about. I'm already looking forward to our next session with you right here at great. ITU FM. तो मैं तो बिल्कुल I'm going to write down your name और आपको बार बार हम लोग ज़रूर तंग करेंगे. Pleasure जी. मगर क्योंकि आज का session is concluding just now, I would like to hear your concluding remarks या one final message for the audience of this particular podcast. आप क्या कहना चाहेंगे? चलें जी, क्योंकि यौम मई है, यकम मई है, तो इस तरह करते हैं कि अल्लामा इकबाल का थोड़ा सा एक शेर सुना देते हैं आपको, ठीक है ना? Love that. तो बड़ी मज़ेदार पोएम इकबाल लिखते हैं वो लेनिन खुदा के हजूर में. उसमें वो ये कहते हैं कि किस तरह से लेनिन डाइज एंड इज़ इन फ्रंट ऑफ गॉड एंड गॉड आस्क्स हिम कि यू नो यू बीन रेजिंग अ लॉट ऑफ फस अगेंस्ट मी. लेनिन जो बोल्शेविक इनकलाब रशियन रेवोल्यूशन का लीडर था. So Lenin says कि तू कादिर व आदिल है, you are you know the powerful and the just etc. मगर बंदा मजदूर के हालात तेरी दुनिया में बड़े बुरे हैं. I'm paraphrasing. Iqbal said it much better. तो God then thinks about what Lenin has said and he answers with this poem. And he बल्कि है ये टाइटल है पोएम का, फरमाने खुदा फरिश्तों से. So he commands his angels. What does he command? He says, उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काहे उमरा के दरो दीवार हिला दो, गरमाओ गुलामों का लहू सोजे यकीन से, कुंचक के फरमाया को शाही से लड़ा दो, सुल्तानी जमहूर का आता है ज़माना, जो नक्शे कौन तुमको नजर आए मिटा दो, जिस खेत से दहकां को मयसर नहीं रोजी, उस खेत के हर होशाए गंदम को जला दो. उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो. Excellent. Thank you. There could not have been a better closing to this session today. Thank you very much once again. We had with us in the studio Dr. Taimur Rahman. Has to be one of the best guests we've had on this series so far. And what a great time. Again, thank you very much for taking out time for us and talking to us, Not at all. talking to our audience members, especially the students of ITU. It's my pleasure entirely. Thank you so much for this wonderful opportunity, this honor जो आपने बुलाया है. बहुत बहुत शुक्रिया. You're welcome. We're already looking forward to our next session with him. आपके पास कोई questions, remarks, any message that you have for our guest, make sure you comment them below and we will make sure that it reaches him. Once again, a very good day to all of you. Thank you for watching this space.